इस बुलेटिन की खबरों से पहले बात राइजिंग इंडिया न्यूज 18 के खास कार्यक्रम शी शक्ति की बात कर लेते हैं। देश की महिला शक्ति का सम्मान आज इस मंच के जरिए न्यूज 18 कर रहा है। For women who take loans from bank is less than 2% compared to men. We are doing far better. We have proven now financially that we are better investments. So I think when you talk about women-led development, that is exactly where the Prime Minister has taken the governance agenda to. That if you want to financially be strengthened as a society, then it is imperative that women be equal partners. So it's obviously there's a lot of cushions and fallback already women woven into the system. I would not term it as cushions. That necessities. That makes light of our achievement. Yes. Nothing is a cushion. We didn't have access. We have now equal access and we are doing better than men. That is how one should position it. Yes. No woman is getting a cushion. So how does, when you're talking of women-led development, when I meant cushion, I mean what is the fallback that she would need to be supported with, considering that the multiple roles that she will be continued to expected to play, and the policies and practices and social messaging that will be required to facilitate this transition and I think empathy it's and about support. creating access to opportunity. For instance, I cannot imagine why young girls were not allowed to study in Sainik schools. Now we have young girls studying in Sainik schools. We have women now in the Permanent Commission. We have women now who are launching our space programs to Mars or Chandrayaan. These are not women who just happen to be now contributing. These are women who are waiting for that opportunity at that high table. So I believe that when you talk about what is the social change, I mean, Tessie and 3 other scientists joined us recently at the G20 summit for women ministers in Gandhinagar. And the G20 partners were aghast. They thought that a prima donna in all scientific gear is going to walk in as the ISRO face. And suddenly, it's very quietly walked in, Tessie, and then Ritu walked in, and everybody else walked in, and they were like, these are the women who went and did this remarkable thing at Mars. We said yes. So I think there is this perception that if it was a female who's launching rockets, then she wouldn't be this 50-something lady in a sari. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 14 अगस्त को कमलनाथ उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी में शामिल होंगे। इसको लेकर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो चुकी है और इसी लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह ने तंज कसा। उनका कहना है कि कांग्रेस संकट में आ गई है, इसलिए महाकाल की शरण में जा रही है। ये नहीं है कि वो शामिल होंगे, सवाल ये है कि अब क्यों? चुनाव है इसलिए। ये मूल प्रश्न है, इसका कोई जवाब नहीं दे रहा कांग्रेस। भाई महाकाल की सवारी तो आदिकाल से निकल रही है, मेरे पूर्वजों के पहले से निकल रही है, अभी तक क्यों नहीं गए? वो तो मध्य प्रदेश में गए, लंबे समय से सांसद हैं, लंबे समय से केंद्रीय मंत्री थे, मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं गए? अब इसलिए गए कि संकट है इनकी कांग्रेस पर, और कांग्रेस को बचाने के लिए अब जो छद्म धर्मनिरपेक्षता वाली जो है, जो चुनावी हिंदू है, जो शोकाल्ड हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में भ्रम, काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर से अगली बड़ी खबर। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर दौरा होने जा रहा है। लोकसभा में दिए गए भाषण पर सिंधिया की तरफ से भी वक्तव्य, उनकी तरफ से कमलनाथ के धार्मिक आयोजन कराने पर बयान सामने आए। उनकी तरफ से विपक्षी एकता पर भी सवाल किए गए हैं और सत्ता के लालच के लिए ये कुनबा बन रहा है, ये बात सिंधिया की तरफ से कही गई। देश की जनता सब कुछ जानती है, इनकी मुखौटे जनता उतारेगी। रामायण और महाभारत का संदर्भ बहुत सुन रहे हैं। भगवान राम और रावण का संदर्भ बहुत सुन रहे हैं। जनेऊधारियों की बहुत बात हो रही है। मंदिर की परिक्रमा का पर्यटन का सत्र की शुरुआत हो चुकी है।
यज्ञ बहुत आयोजित किए जा रहे हैं। कोई राजनीतिक दल पहली बार अपने मैनिफेस्टो में राम वनगमन पथ की घोषणा कर रहे हैं, पर मैं मानता हूं कि देश की जनता सब कुछ जानती है और इनके मुखौटे जनता ही उतारेगी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी का जगरनॉट नहीं है, यही तो कठिनाई है कांग्रेस की। ये देश की जनता की लहर है और इस लहर के सामने ये कुनबा जो सत्ता के लालच के साथ इकट्ठे हुए हैं, जिनके आत्मा में विरोध है, और जैसे मैंने कल सदन में कहा कि जिनके दिल नहीं मिलते हैं उनके दल मिल रहे हैं। दूध का दूध और पानी की पानी देश की जनता 2024 में करके भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित करेगी। भोपाल से अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कमलनाथ पर सवाल उठाने को लेकर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह की तरफ से बयान सामने आ रहा है। कमलनाथ अनेकों बार महाकाल दरबार जा चुके हैं। भाजपा के नेता कौन होते हैं प्रमाण पत्र देने वाले? कमलनाथ 50 साल से पूजा पाठ कर रहे हैं। हमारा धर्म हिंदू धर्म है। कांग्रेस सनातन का सम्मान करती है, लेकिन भाजपा सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रही है, कहना है जयवर्धन सिंह का। जी अनेकों बार पहले हाजिर हुए हैं महाकाल भगवान के दरबार में, ये कोई पहली बात थोड़ी है। और वैसे भी माननीय नरोत्तम मिश्रा जी कौन होते हैं प्रमाण देने वाले, कौन हिंदू है कौन नहीं है? हमारे हिंदू धर्म का बहुत गौरवशाली इतिहास है, पुरानी परंपराएं हैं, हजारों वर्षों का हमारा इतिहास है। और वहीं भाजपा का तो सिर्फ 30 साल का इतिहास है। तो वो कौन होते हैं प्रमाण बांटने वाले? ये सिर्फ उनको सहन नहीं होता है जब कमलनाथ जी धर्म की सेवा करते हैं। चलिए अब बात करेंगे शिवराज कैबिनेट की बैठक की। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। वहीं पर पंचायत सचिवों का वेतनमान बढ़ाने का फैसला लिया गया और भी कई फैसले शिवराज कैबिनेट की बैठक में हुए हैं, जैसे कि दमोह जिले की बटियागढ़ ग्राम पंचायत को नगर परिषद बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा सीएम राइज योजना के अंतर्गत 16 सीएम राइज विद्यालय और 19 कन्या शिक्षा परिषद के निर्माण की भी स्वीकृति आज कैबिनेट ने दी है। भिंड में बनने वाले सैनिक स्कूल के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अमरकंटक में ऊपरी क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। अमरकंटक के नीचे सैटेलाइट शहर बसाया जाएगा। कैबिनेट के द्वारा किए गए हैं, इसमें 75 जो है बिजावर तहसील में 44 पटवारी हल्के थे, राजनगर तहसील में 75 पटवारी हल्के अब शेष बचेंगे। बाकी के 31 हल्के इसमें समाविष्ट किए गए हैं सतई तहसील के अंदर। बालाघाट के अंदर एसडीएम का अनुविभाग बनाने को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी आज दी गई है। राजधानी भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि संत रविदास का भव्य अलौकिक और दिव्य मंदिर बनाया जाएगा और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी का शामिल होना सौभाग्य का विषय है। पीएम मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं जब वो आएंगे। सागर के बड़तुमा में संत रविदास मंदिर का पीएम शिलान्यास करेंगे, जो अद्भुत समरसता का केंद्र बनेगा। वहीं अमरकंटक में श्री नर्मदा जी लोक बनेगा। अमरकंटक में पहाड़ पर कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। दिव्य और अलौकिक मंदिर संत रविदास जी का बनने वाला है और पूरा उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई। क्या क्या बनेगा ये सब तय हो गया। 3D इमेज भी उसकी आ गई, उसका पूरा प्रारूप भी बन गया। सारी प्रक्रिया पूरी होकर भूमि पूजन होकर काम प्रारंभ वहां होगा। अपने आप में एक अद्भुत प्रोजेक्ट है और वहां जैसे संत रविदास जी के मंदिर का तय होगा, जो जमीन 1,00,000-2 लाख रुपया बिका थी वो 1 करोड़ होगी। अमरकंटक अपना ऐसा पवित्र स्थल है जहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। तो 2 चीजें, एक
श्री नर्मदा जी लोग वहां बने, वहां जो स्थान है देख लीजिए इस सुंदर मंदिर को, जो अभी भले ही काल्पनिक है लेकिन जल्द ही इसका निर्माण करवाया जाएगा। ये मंदिर जिनके नाम से बनवाया जा रहा है, उन्हें दर्शन शास्त्री कहें या कवि, समाज सुधारक कहें या ईश्वर के अनुयायी या फिर कहें संत। हम बात कर रहे हैं संत रविदास की, जिनके अंदर एक नहीं कई स्वरूप थे। उन्हीं स्वरूपों का अवलोकन अब आप और हम करेंगे एमपी के सागर में, जहां संत रविदास मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा और आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12 अगस्त को पीएम सागर आएंगे। 100 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर बनाया जाएगा, जिसका एक संत शिरोमणि श्री रविदास जी के भव्य मंदिर एवं विशाल स्मारक का शिलान्यास होगा। मंदिर नागर शैली में 10,000 वर्ग फुट में बनेगा। इंटरप्रिटेशन म्यूजियम बनेगा। संस्कृति और रचनात्मक के साथ संत रविदास के कृतित्व व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने वाला संग्रहालय भी बनेगा। संग्रहालय में 4 गैलरी बनेगी। इसमें भक्ति मार्ग, निर्गुण पथ में योगदान, संत जी का दर्शन और उनके साहित्य समरसता का विवरण होगा। लाइब्रेरी के अलावा संत हॉल, जल कुंड, भक्त निवास भी बनेगा, जो आध्यात्मिक सुविधाओं से युक्त होगा। भक्त निवास में देश विदेश से संत रविदास के अनुयायी और अध्येता आएंगे, जिन्हें संत जी के जीवन से प्रेरणा मिलेगी। 15,000 वर्ग फुट में भोजनालय का निर्माण होगा। मंदिर में 2 भव्य प्रवेश द्वार होंगे। सीसीटीवी कैमरे और लाइटिंग की व्यवस्था भी होगी। आगे बढ़ते हैं। छिंदवाड़ा से अगली बड़ी खबर। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से एक बयान सामने आया। बीजेपी इस बार छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट जीतेगी, ये बड़ा दावा उनकी तरफ से। कमलनाथ एक सशक्त राजनेता, उनके पास बाहुबल धनबल है। कमलनाथ के पास मोहिनी मंत्र है, जनता को मोह लेते हैं। अब कमलनाथ का तिलस्म टूट रहा है। सौसर और परासिया में कार्यकर्ता सम्मेलन में कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे थे, बड़ी बात उनकी तरफ से कही। कमलनाथ जी एक सशक्त नेता है, बाहुबल है उनके पास, धन बल है उनके पास, और एक प्रकार का जनता को मोहने का मोहिनी मंत्र मैं मानता हूँ, उस प्रकार का है उनका। पर उनका अब जो तिलिस्म टूट रहा है, और मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि इस बार हम। और इंदौर और रतलाम के मुद्दे को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की तरफ से चेतावनी दी गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर आप कुरान बाइबल का सम्मान चाहते हैं तो आपको हिंदू ग्रंथों का सम्मान करना होगा। सर तन से जुदा नारे लगाने वालों पर जब कार्रवाई होती है तो बिलबिलाते हैं। ये देश संविधान से चलता है और वही संविधान आपको नमाज पढ़ने का अधिकार देता है, कहना है रामेश्वर शर्मा। बदतमीजी की इंतहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि लोग समझ जाएं, सीख लें। जब कार्रवाई होती है तो फिर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बिलबिलाते हैं और कहते हैं कि हम पर अन्याय हो रहा है। अगर तुम चाहते हो कि तुम चर्च में बाइबल को सम्मान चाहते हो, तुम चाहते हो कि कुरान का सम्मान हो, तो तुम्हें फिर रामायण, गीता, भागवत, वेद, उपनिषद, गुरु ग्रंथ साहब, इनका सम्मान करना पड़ेगा। आप फाड़ नहीं सकते हनुमान चालीसा, आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। और मैं फिर मेहरबानी करके प्रार्थना कर रहा हूं कि। और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की तरफ से भी आज एक बड़ा बयान सामने आया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएंगे, उनकी तरफ से कहा गया। लाडली बहना नारी सम्मान योजना वचन पत्र में शामिल होंगी और छत्तीसगढ़ के वचन पत्र में भी इन दोनों योजनाओं को शामिल किया जाएगा, उनकी तरफ से कहा गया। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मंत्री से डिप्टी सीएम और अब क्या सीएम तक का सफर तय करेंगे आप? मैं तो आज में रहता हूँ, पल में रहता हूँ। बहुत ज्यादा पीछे भी ध्यान नहीं ले जाता, बहुत ज्यादा आगे भी नहीं सोचता। जो परिस्थिति बनेगी मैं उसी हिसाब से काम करता हूँ। अभी ये जिम्मेदारी इस स्वरूप में मिल गई, मंत्री के रूप में काम करो, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल भी पार्टी ने दिया। सर, ये अंगूठी को आपने बेहद खास बताया। भोपाल में आपने किसी पंडित से अंगूठी ली और उसके बाद डिप्टी सीएम बन गए, तो क्या संभावनाएं आगे नजर आती हैं कि सीएम की कुर्सी तक आप जाएंगे? अंगूठी तो ज्वेलर के यहाँ से आई, सलाह पंडित जी की थी, कहते हैं। और बात करेंगे ग्वालियर के। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मांझी समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। राम लक्ष्मण वाली केवट की नाव उन्होंने चलाई। तस्वीरें जो सामने आई उसके बाद अब चर्चाओं का विषय भी बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए। ग्वालियर से ये खास तस्वीरें। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। सीएम शिवराज